So, hello everyone. I would like to wish you all an energetic morning on my behalf. And today you are going to be taught, possessive adjective and possessive pronoun. And I hope you will like my video. And if you will like, so you know what have you to do. Okay guys. So आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ possessive adjective and possessive pronoun. So आप possessive adjective and possessive pronoun को कैसे अपने स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं और इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं आपको एक सरल वे में बताऊंगा गाइस. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू. एंड राइटिंग इज not important for speaking. You are here for speaking. You have to speak all the time guys. Wherever you are, if you are with your friend, if you are going somewhere, and if you are at bus stand, if you are going to buying vegetables, wherever you are, just you have to speak all the time. As you speak Hindi language, so why can't you speak English language? Because it's also a language. It's not a subject. Speaking English is not a subject. It's a language. So you have to take it like a language, and you have to learn it. And it's very simple. You can see as I am speaking, as I am speaking, definitely you can speak if you are going to do practice. Okay. And I think you will have to do practice guys, because without practicing nothing is going to be done guys. You know very well. Whom are you waiting for? Let's start your journey. And you have to speak all the time as I told you. And wherever you are, I think if you are going somewhere for buying vegetables, and many things is available, and if you are doing many things, whatever is being done by you, just try to translate all that thing in English language. Try to translate. And if you are going to translate, so you will get to know that what is the real advantage of English language. If you are going to somewhere, so you can if you are speaking English at the time, at that moment, so you will be respected by everybody will think that you are a knowledgeable person at that time. And if you don't have knowledge about any other subject, if you have knowledge only English language, so you can speak and you can make yourself boast. And everybody will think that you are a knowledgeable person. We should not mess with him. Okay. So try to understand my words. That there are a lot of advantages of speaking English. So you can know that's why you are here for learning English and speaking English. So whom are you waiting for? As I told you, just let's start our video. And everything you will be told. There is no to worry. Okay guys. So बने रहिए वीडियो में और आप सभी को हर एक चीज बताई जाएंगी. आप कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यदि आपको उसके वर्ड्स पता है, तो आपको बस ट्राई करना है. ऑल दैट थिंग्स यू हैव टू ट्राई. Translate into English. Translate into English in your mind. And if you are not going to open a mouth, so how can you speak guys? And first thing मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग कभी 10-5 लोगों के सामने या फिर अपने ऑडियंस के सामने बोलने से बहुत घबराते हैं, जानते हैं, उनको एजिटेशन बहुत होती है उस वक्त. सो एट द टाइम, if you are not going to speak on podium, so first of all you have to speak in front of mirror. There is no one who can catch your mistake. At the time you can speak very fluently. And आपको बोलते वक्त अपनी आवाज को ना क्या करना है, रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड करने के बाद आपको अपनी स्पीकिंग को सुनना है. सुनने के बाद आपको क्या करना है, उसमें से अपनी मिस्टेक्स को पकड़ना है. दैट वेयर आर यू मिस्टेकिंग. ओके. आप मिस्टेक्स को पकड़ रहे हैं, और मिस्टेक्स को पकड़ना बहुत अच्छी बात होती है. यदि आप मिस्टेक्स को पकड़ने जा रहे हैं, देन आप जान पाएंगे कि मैं गलती कहां कर रहा हूं और मुझे इंप्रूव कहां करना है. ओके गाइस. एंड आपको अपनी स्पीकिंग में नहीं, जस्ट you have to listen. Everybody is speaking, because a good listener is a good speaker. So first of all you have to listen to everybody. Okay. सबको सुनना है, और आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार के सेंटेंस वो यूज कर रहे हैं, और किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स वो यूज कर रहे हैं, और कौन सा सेंटेंस ये बना रहे हैं, कहां से ये बिलोंग करता है. You have to think all that thing. So let's start our video. And today's our matter is possessive pronoun and possessive adjective. So let's start guys. Okay. Possessive adjective and possessive noun. You can say it PA and PP. You can say PP, PA. Possessive adjective and possessive pronoun. So यहाँ पे जो possessive adjectives होते हैं मैं आपको बता दूंगा. My, your, our, his, her, their. Okay.
और मैं आपको बता देता हूं, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, पहले आपको पॉजिटिव प्रोनाउंस बता देते हैं। माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, दियर्स। ओके गाइस, मैं आपको एक चीज और बता दूंगा, हमें बस यही ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा, जानते हैं आप, इनके साथ हमेशा जो है नाउन होगा। इनके साथ हमेशा नाउन का इसके साथ हमेशा नाउन आएगा, बट इसके साथ नाउन नहीं रहेगा, ये अकेले आता है। और ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा अपने साथ नाउन लेंगे। ओके, सो यू हैव टू जस्ट आपको यही देखना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आएगा और पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ सिर्फ ये अकेले आते हैं, इनके साथ नाउन नहीं आता है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे ही इसके साथ नाउन आता है तो आपको दिमाग में अपनी ये बात सोच लेनी है कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताता हूं। बट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, कोई पूछता है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो आपको बोलना है बिकॉज उसके साथ नाउन क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि जो प्रोनाउन होता है ना वो नाउन को रिप्लेस कर देता है। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट यूज हियर नाउन। ओके, सो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आएगा। यू हैव टू थिंक। ओके, सो नाउ आई विल टेल यू एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, यह मेरा कमरा है। ओके गाइस, यह मेरा कमरा है। दिस इज माई रूम। देखिए, माई के साथ आया ना, नाउन आया ना एक, रूम। रूम क्या है आपका? नाउन है। नाउन, ये रूम जो है आपका वो नाउन है। एंड एक ट्रांसलेशन मैं आपको इसका भी बता दूंगा, यह मेरा है। यह मेरा है, ओनली यह मेरा है। सो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? दिस इज माई नॉट, दिस इज माई नॉट, दिस इज माइन। माई का जो प्रोनाउन फॉर्म होता है वो होता है माइन। ओके, so you have to translate like this and one more example I will tell you। यह घड़ी तुम्हारी है। यह घड़ी तुम्हारी है। सो गाइस, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, दिस, आपको यही ध्यान देना है कि जस्ट आपको दिस या दैट के बाद पॉजिटिव प्रोनाउन में आपको जस्ट वो नाउन यूज कर देना है, दिस और दैट के बाद। दिस वॉच इज योर्स। योर्स, ये देखिए, योर का जो प्रोनाउन फॉर्म होता है वो होता है योर्स। सो यह कमरा, यह मेरा कमरा है। ओके गाइस, सो दिस इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, सो यू हैव टू ट्रांसलेट इट, दिस इज माई रूम। दिस इज माई रूम। ओके, एंड रूम इज नाउन, यू नो, एंड यह मेरा है, दिस इज माइन। यह मेरा है, दिस इज माइन। एंड यह घड़ी तुम्हारी है, यह घड़ी आपकी है। सो दिस वॉच इज योर्स। आपको यही ध्यान में रखना है कि दिस और दैट के बाद जस्ट हमें यूज करना है दैट नाउन, वो उस नाउन को। उसके बाद वी हैव टू ट्रांसलेट लाइक पॉजिटिव प्रोनाउन। एंड यू नो, योर का पॉजिटिव फॉर्म जैसे मैंने आपको बता दिया है कि योर होता है, योर्स होता है, माई का माइन होता है, आवर का आवर्स होता है, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्स हो जाता है, एंड दियर का दियर्स हो जाता है। एक और होता है इट, और इट का इट्स हो जाता है। So you can translate. And one more thing I would like to tell you all, that if you are going to translate any sentence in one time, so I will tell you that you have to translate approx 6 times. Like यह मेरा कमरा है, this is my room, so you have to translate like this is my room, this is not my room, is this my room, is this not my room, why is this my room, and why is this not my room. You have to translate approx 6 times, and if you are going to translate it approx 6 times, so you will get to know that you are improving in yourself, and you know you are getting your fluency, and it's very much important that you have to get your fluency. Everybody wants to get their fluency, so that's why I am telling you, यह मेरा कमरा है। आपको इसको 6 टाइम्स ट्रांसलेट करना है, और आपको निगेटिव में और एक इंट्रागेटिव में, दोनों में आपको करना रहेगा। दिस इज माई रूम, दिस इज नॉट माई रूम, इज दिस माई रूम, इज दिस नॉट माई रूम, वाई इज दिस माई रूम, एंड वाई इज दिस नॉट माई रूम। So like that you have to translate the same sentence. This is mine, this is mine, this is not mine, is this mine, is this not mine, why is this mine, why is this not mine. This यह घड़ी तुम्हारी है, this watch is yours, this watch is not yours, is this watch yours, is this watch not yours, why is this watch
yours, why is this not why is this watch not yours? So you have to translate, and if you want to translate it fast, so definitely you will get to know that yes, you are really improving in your speaking, you know. So you have to translate, just try to speak it fast, you know. यह मेरा कमरा है, this is my room, this is not my room, is this my room, is this not my room, why is this my room, why is this not my room? You have to translate like this. Okay guys, so let's move on, आगे बढ़ते हैं हम। आपको बताता हूँ और कुछ सेंटेंसेस इससे रिलेटेड। ओके गाइस, सो बने रहिए वीडियो में, आपको बहुत मजा आने वाला है और वीडियो को देखते रहिएगा गाइस, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है कि माई का माइन होता है, योर का योर्स होता है, आवर का आवर्स होता है, हिज का हिज होता है, हिज का हिज ही रहता है, एंड हर का हर्स हो जाता है, दियर का दियर्स हो जाता है। ओके गाइस, तो आपको बने रहना है और मैं आपको बताता हूँ कुछ और सेंटेंसेस रिलेटेड टू पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके गाइस, तो वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है और आप आज से अपने फर्स्ट डे से ही ट्राई टू स्टार्ट स्पीकिंग। ओके, आपको अपने पहले दिन से ही स्पीकिंग को जारी करना है। एंड ये देखिए, मैं आपको थोड़े बहुत और ट्रांसलेट बताता हूँ इससे, उसके आगे मैं बढ़ूंगा और आपको और कुछ चीजें बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। वह मेरा परिवार है, एंड सेकेंड इज रिलेटेड टू पॉजेसिव प्रोनाउन, वह परिवार मेरा है। So you can see at this time, वह मेरा परिवार है। ओके गाइस, वह मेरा परिवार है एंड वह परिवार मेरा है। सो यहाँ पे जो देखिए, जो नाउन आता है ना, वो हमेशा क्या बोलते हैं उसको, वो यहाँ पे हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आएगा और यहाँ पे जस्ट दिस और दैट के मतलब एडजेक्टिव जो जहाँ पे प्रोनाउन रहेगा, प्रोनाउन के जस्ट पहले ही आ जाएगा। ओके, ये जो यहाँ पे जो नाउन रहेगा वो प्रोनाउन के जस्ट पहले आ जाएगा। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू what is the translation of this sentence that is my family, and second is that family is mine. Okay guys, that family is mine. Even you have to translate it approx 6 times because it's very much important for speaking English. That is my family, that is not my family, is that my family, is that not my family, why is that my family, why is that not my family? Okay, so you have to translate it 6 times. Even you have to translate it 6 times. I would like to tell you approx 6 times these sentences. So that is not my family. Okay guys, so you can say is not को आप isn't भी बोल सकते हैं, that isn't my family. Okay, is that my family, is that not my family, why is that my family, why is that not my family। बस आपको एक चीज और ध्यान देना है कि गाइस, आपको हमेशा एक सिंपल बनाना है, सिंपल का निगेटिव बनाना है, एक इंट्रागेटिव का निगेटिव बनाना है सिंपल में, और एक निगेटिव बनाना है। ओके गाइस, एंड आपको जो एक डब्ल्यूएच टाइप का होगा उसको आप एक सिंपल में बनाएंगे और एक निगेटिव में बनाएंगे। यदि आप ऐसे कर रहे हैं तो आप हमेशा सेंटेंस बोलने से पहले ही जान जाएंगे यहाँ पे यूज क्या हो गया, निगेटिव आ रहा है, इंट्रोगेटिव आ रहा है, या इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव आ रहा है, क्या है वो आप आसानी से समझ सकते हैं। इवन इसको भी मैं कर देता हूं, दैट फैमिली isn't mine. As I told you, you can say is not is equal to isn't. Okay, is that family mine, is that family not mine, why is that family, sorry, yes, why is that family mine, why is that family
नॉट माइन। एंड वन मोर थिंग, आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्योंकि यू आर हियर फॉर स्पीकिंग, ओके। सो यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू नॉट टू राइट, ओके। सो आपको बोलना है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ यही लिखना है। और बोलने के लिए आपको ये बस आपको अपनी स्पीकिंग में बोलना है, यूज करना है इसको, क्योंकि ये बोलना है, लिखना नहीं है आपको, ये बोलना है। आप एक ही लिखिए और उससे जान सकते हैं कि आपको कैसे बोलना है और कैसे नहीं बोलना है। सो गाइस, एक दो और सेंटेंस मैं इसको बता दूंगा आपको, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में बता देता हूँ। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन का सेंटेंस आपको। सो लेट्स मूव ऑन। एंड आपको देखना है कि कैसे हो रहा है ये। वह परिवार मेरा है, दैट फैमिली इज माइन, दैट फैमिली इज नॉट माइन, is that family mine, is that family not mine, why is that family mine, why is that family not mine. So you have to translate it fast, okay. That family is mine, that family isn't mine, is that family mine, is that family not mine, why is that family mine, why is that family not mine. You have to translate it fast, okay guys. Let's move on. And मैं आपको बताता हूँ, इससे रिलेटेड मैं आपको एक पास्ट का बता देता हूँ और एक फ्यूचर का बता देता हूँ गाइस, जो आप बोल सकते हैं, बहुत इजीली बोल सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है ये। तो आगे बढ़ते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको पास्ट का। यह कुर्सी मेरी थी, मेरी थी। ये जो है सेंटेंस आपका कहां से बिलोंग करता है? ये है आपका पीपी से बिलोंग करता है, पीपी पॉजिटिव प्रोनाउन से बिलोंग करता है। और इसका ट्रांसलेशन जो होगा, दैट दिस चेयर वॉज माइन। यहाँ पे दिस और दैट के साथ हमेशा वॉज का ही यूज करेंगे। दिस चेयर वॉज माइन, दिस चेयर वॉज माइन, दिस चेयर वॉज नॉट माइन, इज वॉज दिस चेयर माइन, वॉज दिस चेयर नॉट माइन, एंड वाई वॉज दिस चेयर माइन, वाई वॉज दिस चेयर नॉट माइन. You have to speak it like earlier. You have to speak and no, you have to speak it even 6 times. यह कुर्सी मेरी थी. This chair was mine. और मैं आपको एक बताता हूँ, इसको भी 6 बार ही कर देता हूँ मैं. This chair wasn't mine. हम was not को wasn't कर सकते हैं. Was this chair mine? Was this chair not mine? Why was this chair mine? Why was this chair not mine? Okay guys, सो ये तो हो गया आपका पास्ट का. इसको भी आप 6 तरीकों से ही बना लेंगे. और एक वैसे ही रहेगा आपका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव का रहेगा, दैट यह कुर्सी मेरी थी, तो वहां पे हो जाएगा यह मेरी कुर्सी थी. सो दैट चेयर, दैट इज माय चेयर, दैट वाज माय चेयर. ओके, दिस वाज माय चेयर. जो भी होगा आप बोल सकते हैं, बहुत इजीली बोल सकते हैं. यह कुर्सी मेरी थी, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया. और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा? यह मेरी कुर्सी थी. दिस वाज माय चेयर. यू कैन से इट्स वेरी सिंपल. एंड एक सेंटेंस में आपको बता देता हूँ कि आप फ्यूचर में इसको कैसे बोल सकते हैं. तो फ्यूचर का थोड़ा सा अलग रहेगा, बस उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा चेंज रहेगा. बाकी सब वैसे ही है, सब में वैसे ही है, बस थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब का खेला है यहाँ पे. सो आपको हेल्पिंग वर्ब भी समझना है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा. ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ एक सेंटेंस और एक दो सेंटेंस बता देता हूँ फ्यूचर में कैसे बनेगा. क्योंकि फ्यूचर का सहायक सब में हेल्पिंग वर्ब से अलग डिफरेंस रहेंगी, बाकी सबका ट्रांसलेशन करने का तरीका सेम ही रहेगा. ओके, सो बताता हूँ मैं आपको एक फ्यूचर का. वह किताब मेरी होगी. वह किताब मेरी होगी. सो इसमें जो आपका सहायक क्रिया रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वो होगा विल बी. ओके, बस यही सब में सबके साथ यूज करना है. दैट बुक विल बी माइन. अब यहाँ पे आप मेरी होगी तो माइन, तुम्हारी होगी तो योर्स, हमारी होगी तो आवर्स, उसकी होगी तो हिज और हर्स, एंड उनकी होगी तो दियर्स. यहाँ पे बस यही हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोनाउन से बिलोंग करता है. ये सेंटेंस पॉजिटिव प्रोनाउन से बिलोंग करता है ये. एंड लेट्स आगे बढ़ते हैं. एक और सेंटेंस में बताता हूँ पॉजिटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड. यह मेरी पेन होगी.
इसके भी साथ आपको वही सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. दिस will be my pen. Even you have to speak it approx 6 times. That book will be mine. That book will not be mine. बस यहाँ को जो आपको हेल्पिंग वो नॉट का फॉर्म रहेगा वो आपको विल और नॉट के बीच में आपको रखना है. नॉट को विल बी, यहीं पे आपको निगेटिव फॉर्म में नॉट रखना है. विल नॉट बी, लाइक दैट बुक विल बी माइन, दैट बुक विल नॉट बी